Hello to everyone. Today we are going to discuss the mean of the data using step deviation method. In the previous videos, we discussed about the direct method and assumed mean method. So first we are going to discuss the formula that we are going to use in step deviation method. In this step deviation method, formula is x bar is equals to a plus summation of fi ui upon summation of fi into h. So what is h here? So h is here the class size, ui is xi minus a by h, and a we already know that is here assumed mean. तो a क्या है? assumed mean है. और हमने assumed mean method में भी फॉर्मूला डिस्कस किया था, that is x bar is equals to a plus summation of fi di upon summation of fi. ओके, तो यहाँ पे di की जो वैल्यू थी, di is xi minus a. You can see in ui we are using xi minus a, or we can say ui is equals to di by h. The difference in assumed mean and the step deviation is that we are using in step deviation is ui, and the value of ui is di by h, and in assumed mean that is your di, and di is xi minus a. Okay, so either you can apply ui as xi minus a by h, or you can write di by h. So at the end you will get the same result. h क्या है? क्लास साइज है. क्लास साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? दैट इज द डिफरेंस इन देयर क्लास इंटरवल. सो क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस रहेगा आपका अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट. सपोज हमारे पास जो क्लास इंटरवल है दैट इज 40 to 50, and then 50 to 60, and 60 to 70. तो upper limit is your 50, 50 minus 40. So class size is 10 each class interval. So the class size is same. So we can say H is your 10. So 50 minus 40, 10, 60 minus 50 is 10, 70 minus 60 is again 10. तो आपके H की वैल्यू क्या है? 10 है. तो H की वैल्यू 10 कैसे आई हमारी? That is the difference in their class interval, that is upper limit minus the lower limit. Now, how we are going to apply this formula in the example? Let us take a question to understand. Question is, the table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure on food. ये आपके पास class interval है, and this one is your frequency values. And now we are going to find xi values, that is your midpoint values. तो हमने लास्ट वीडियोस में भी समझा था इनडायरेक्ट मेथड एज वेल एज इन अज्यूम्ड मीन मेथड कि xi की वैल्यू हाउ वी कैन फाइंड. वी कैन ऐड लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइड कर देंगे बाय 2. तो वो वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास मिड पॉइंट वैल्यू. तो अगर हम फर्स्ट क्लास इंटरवल की बात करें तो हमारे पास वैल्यू क्या है? सो 100 to 150, तो 100 लोअर लिमिट प्लस 150 इज योर अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 125. और सेकंड हमने मेथड डिस्कस किया था कि इसका हम क्या निकाल लेंगे? क्लास साइज. क्लास साइज क्या है? 150 माइनस 100, 150 minus 100, that is 50. So in each case your difference is 50. Here is 50, difference is 50. Here again difference is 50. So in each case the difference is 50. So your H is 50. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? Either we can apply to find xi is h by 2 plus the lower limit. अब लोअर लिमिट क्या है हमारे पास? 150 है, और h कितना है हमारे पास? 25 है. तो 25 प्लस 150 ये आपको वैल्यू क्या दे देगा? 150 प्लस 25, दैट इज 175. अगर वैसे बात करें तो 250 डिवाइड बाय 2, अगेन इट विल गिव्स टू 175. सिमिलरली 200 प्लस 25 इट विल गिव्स टू 225.
and then it is 275 and last is 325. Either you can find directly the ui value. ui value क्या है, xi minus a by h, or you can say ui is your di by h. तो सिंपल, अगर di फाइंड आउट करेंगे पहले, it will gives you the easy way. So xi minus a, xi minus a we are going to use in ui also. So xi minus a क्या है आपकी assumed value. तो assumed value क्या हो जाएगी इसमें, we are having the 5 terms total, तो 5 values की जो middle value है, right, so this one is your middle value in xi, right, so that will be your assumed value. तो ये a क्या हो गया आपके पास 225, तो यहाँ पे वैल्यू di की क्या हो जाएगी 125 माइनस 225, तो अगर हम डिफरेंस लें तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 100 और साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव। सिमिलरली 175 माइनस 225 आपका क्या आ जाएगी वैल्यू, दैट इज माइनस 50, दिस विल बी 0, 50 एंड 100। तो ui की वैल्यू क्या हो जाएगी di बाय h हमारे पास कितना है 50, तो माइनस 100 बाय 50, ये आपको वैल्यू क्या दे देगा माइनस 2, माइनस 50 बाय 50 माइनस 1, 0 1 2। तो आप एक चीज, एक ट्रिक कह लीजिए, याद रखिए कि अगर आपके पास जो भी आप अज्यूम्ड वैल्यू लेंगे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और उसके ऊपर जो वैल्यूज रहेंगी वो नेगेटिव, और जो उसके नीचे रहेंगी लाइक हियर 1 2 ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अपर इज नेगेटिव। तो आप डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हो 0 -1 -2 1 एंड 2 लाइक दिस। तो ये सिंपल ट्रिक है, जब भी आप यूआई निकालेंगे हर एक क्वेश्चन में आपकी यूआई की वैल्यू ऐसे ही आएगी, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट। अगर आप कैलकुलेट करना भी चाहें फॉर वेरीफाई कि वेदर यू आर गेटिंग द करेक्ट वैल्यू और नॉट, यू कैन वेरीफाई। तो आप डायरेक्टली वहां पे वैल्यूज लिख सकते हैं यूआई की, दैट इज -2 -1 0 1 एंड 2, सो दैट इज योर यूआई वैल्यू। तो हमारे पास यूआई की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमारे पास जो फार्मूला है स्टेप डेविएशन का, वो फार्मूला क्या है a प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो समीशन ऑफ एफ आई हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमारे पास कितनी लोकेलिटीज, एक लोकेलिटी में कितनी हाउस होल्ड्स है, दैट इज 25, सो दैट इज योर फ्रीक्वेंसी 25। तो फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी गिवन टू यू, यूआई हमने फाइंड आउट कर ही लिया है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, दैट इज एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई। तो मीन्स हम ui और fi की वैल्यूज को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा उसका रिजल्ट। सो 4 इंटू -2 इज -8, 5 इंटू -1 इज -5, 12 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4। तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करें तो 6 है, और अगर हम नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है -13। सो 13 और 6 को अगर हम ऐड करें तो -13 प्लस 6 इज -7। अब हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई हैं, ए की वैल्यू कितनी है 225, एफ आई यू आई का सम कितना आ गया हमारे पास -7, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है दैट इज 25, एच हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है दैट इज 50, 25 और 50 को डिवाइड करें तो क्या आ जाएगी वैल्यू 225 -14, राइट। तो वह हमारे पास जो मीन आएगा दैट इज 211। सो 211 आपका क्या रहेगा डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ दिस 25 हाउसहोल्ड्स। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 in the air. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. So this one is consideration of SO2. So ये क्या है आपके पास क्लास इंटरवल, गिवन इज फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे xi, फिर हम फाइंड आउट करेंगे ui, एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड fi
ui। तो xi क्या है आपकी मिड वैल्यूज। तो सेम वे से हम फाइंड आउट करेंगे। आइदर यू कैन अप्लाई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 और यू कैन अप्लाई h/2 प्लस लोअर लिमिट, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स आई वैल्यूज। तो 0 प्लस 0.04 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगी वैल्यू 0.02, देन 0.06, 0.1, 0.14, 0.18, 0.22। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे अज्यूम्ड मीन। तो हमारे पास कितनी यहाँ पे वैल्यूज है टोटल 6 वैल्यूज है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर हमारे पास 6 वैल्यूज हैं अज्यूम्ड मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे 6 डिवाइड बाय 2। इसका मिड वैल्यू क्या आएगी 3। मीन्स आइदर वी कैन टेक द थर्ड टर्म और वी कैन टेक द फोर्थ टर्म। चाहे आप थर्ड टर्म ले लें या फिर आप फोर्थ टर्म ले लें, ये दोनों वैल्यूज क्या है मिड है इन 6 टर्म्स की। ओके, सो आइदर यू कैन टेक द थर्ड और फोर्थ। आप कोई भी वैल्यू लेते हैं आपकी जो मीन की वैल्यू है जो आपका मीन का रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो मैं इस क्वेश्चन में अज्यूम्ड मीन 0.1 को ले रही हूँ। सो दिस वन इज माय अज्यूम्ड मीन। अगर ये मेरा अज्यूम्ड मीन है तो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताया है कि अज्यूम्ड मीन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू लेंगे वो हम 0 लेंगे और अपवर्ड जाएंगे मींस ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव से स्टार्ट होंगी, -1 से। तो अगर ये 0 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -1 और ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी -2। और आप 0 से नीचे की वैल्यूज को अगर लेंगे इन टर्म्स को लेंगे तो 0 से नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी +1, ये आ गया +2 और ये आ गया आपके पास +3। दैट्स इट, ये आपकी यूआई वैल्यूज आ गई। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो लेट अस टेक वन वैल्यू और देख लेते हैं कि क्या वो वैल्यू हमारे पास आ रही है कि नहीं आ रही है। सो हमें यूआई का फार्मूला मालूम है। यूआई का फार्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज xi माइनस ए बाय एच। तो हमारे पास जो h की वैल्यू है वो यहाँ पर h कितना है, h हमारे पास है इसका डिफरेंस अपर लिमिट माइनस दी लोअर लिमिट। सो h आ गया आपके पास 0.04। तो अगर हम इनका डिफरेंस लें यहाँ पे xi क्या है आपके पास 0.02 और माइनस अज्यूम्ड वैल्यू है आपके पास 0.1, तो ये वैल्यू बन जाती है आपकी -0.08 और h है आपके पास 0.04। तो डेसिमल कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल कर देगा 8 को बाय 2 और साइन क्या है नेगेटिव। तो हमारे पास आंसर भी क्या आ गया -2। तो वी कैन राइट विदाउट कैलकुलेटिंग the values of ui. So I hope you understand how we are finding the ui. अब तो सिंपल रह गया, हमें क्या करना है सिर्फ मल्टीप्लाई करना है ui को फ्रीक्वेंसी इसके साथ, मींस कॉरेस्पॉन्डिंग -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 4। तो -2 into 4 is -8, 9 into -1 is -9, 0 2 8 and 6। तो पॉजिटिव वैल्यूज को हमने ऐड किया तो ये पॉजिटिव वैल्यूज कितनी आ गई हमारे पास 16। नेगेटिव वैल्यूज को हमने ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 17। इन दोनों को हमने ऐड ऑन किया तो हमारे पास आंसर आ गया -1। और हमें मालूम है कि आपकी स्टेप डेविएशन का फार्मूला क्या है। अब स्टेप डेविएशन का फार्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे। तो स्टेप डेविएशन का फार्मूला क्या है हमारे पास, that is x bar is equals to a plus summation of fi ui divided by summation of fi into h। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.1 प्लस summation of fi ui is -1। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास गिवन 30, सो डिवाइड बाय 30 और h हमने फाइंड आउट किया था दैट इज 0.04। अगर हम इसे सोल्व करें
तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.0013 और इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास जो मीन आएगा वो आएगा 0.998 इज द mean of SO2 in the air of these 30 localities in a certain city. So I hope you understand the concept of step deviation method